of Pakistan, Dr. Arif Alvi, in the parade venue. خواتین و حضرات، شہر کراچی کی رونقیں ہوں یا خوشحال بلوچستان، قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں شمولیت ہو یا کھیل کے آباد میدان، یہ امن کی جیت ہے، بہادر اور غیور پاکستانی عوام کی جیت ہے، یہ اقبال اور قائد کے پاکستان کی جیت ہے۔ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صدارتی بگی پر سوار پریڈ وینیو میں داخل ہو چکے ہیں۔ کمانڈانٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ لیفٹیننٹ کرنل رب نواز ٹیوانا صدارتی بگی کے بائیں جانب، جبکہ دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایڈجوٹنٹ میجر مظاہر فاروق موجود ہیں۔ تحریک پاکستان میں خواتین اور اقلیتوں نے بھی قائد کے شانہ بشانہ بھرپور کردار ادا کیا۔ جی بالکل، اور آج ان تمام عظیم خواتین اور اقلیتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ محترمہ فاطمہ جناح، بیگم شاہ نواز، سلمہ تصدق حسین، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم وقار النساء نون، محمودہ رزاق اور بیگم عبداللہ ہارون خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ سول سیکریٹریٹ لاہور آج بھی بیگم ہدایت اللہ کے لہرائے گئے جھنڈے پر نازاں ہے۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صدارتی بگی پر سوار سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ یوم پاکستان خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ سر وکٹر ٹرنر، رابرٹ کارنیلیس، چندو لال، فاسٹن ایلمر، سیسر چودھری، ونگ کمانڈر مرون مڈل کوٹ اور ان گنت گمنام ہیروز کو جنہوں نے پاکستان بنانے اور اس کے دفاع کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ استقبالیہ کمیٹی کے ممبران صدر پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں۔ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ کا شمار دنیا کے خوبصورت 3 پریڈ گراؤنڈز میں ہوتا ہے۔ مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں یہ پریڈ گراؤنڈ خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور بہت ہی محنت سے اسے آج کی پریڈ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ باوقار، سربلند، ہم نگہبان شرکت کر رہا ہے۔ اس دستے کی قیادت سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ عبدالحق عمرانی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد، گلگت بلتستان، کوہستان سے لے کر کراچی تک امن کے لیے مصروف عمل۔ لائن آف کنٹرول کے محافظ پاسبان کشمیر 657 مجاہد ریجمنٹ کا دستہ، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عطا اللہ عزیز کر رہے ہیں۔ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے والے شاہین۔ اس ریجمنٹ کے 21 بہادر جوانوں نے مادر وطن کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ باوقار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے عکاس ہیں۔ سندھ اور شہر قائد کے محافظ دائمن سائرن، ہر دم تیار، زمانہ امن ہو یا جنگ، موسموں سے بے نیاز، ملکی سرحدوں کے نگہبان، پاکستان رینجرز کے جوان، جن کا تعلق پاکستان رینجرز سندھ سے ہے۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد اظہر کھوکھر کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ پاکستان پولیس کی نمائندگی پنجاب پولیس کا دستہ۔ اس دستے کی قیادت سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس
कैप्टन ये रिटायर्ड आर्मी वालों ने मोहम्मद बड़ी आमिर खान न्याजी लोगों कर रहे जिसमें हैं। है भी फौज दहशतगर्दी और पुलिस खासतौर पर लोग है ऑपरेशन ना रद्दुल पेट्रोलिंग फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने कयाम से अब तक पंजाब पुलिस के 1530 से जायद अफसरान और जवान वतन अजीज पर जान कुर्बान कर चुके। जदीद ज़माने ज़र्ब हर्ब से लैस हमारी मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन की जमानत है। फर्म एंड कर्टियस का नस्ब-उल-ऐन लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू जिला ढांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सरअंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीका अब्बास रेंजर्स, सैयदा सोनिया सिंध पुलिस और इंस्पेक्टर फरियाल नईम ASF की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी। खवातीन व हजरात, सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने प्राइस सर्विसेज बैंड का दस्ता। सूबेदार मेजर नईम अख्तर की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी चीफ पेटी ऑफिसर अकील अहमद, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर एहसान कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in band, which is participating in this parade. पाकिस्तान आर्मी में 16 ब्रास बैंड और 248 पाइप बैंड मौजूद हैं। खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। चाइना पाकिस्तान सब्ज हिलाली हूँ, मन जा बाज़म जान हथेली पर लिए। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता, जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कमर एजाज तमगाए बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल समसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी और स्पेशल सर्विस ग्रुप एयरफोर्स के जाबाज भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर शेरुल्लाह पाकिस्तान नेवी, जबकि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। अल्लाहू का नारा लगाते हुए मन जां बाज़म सलामी का खूबसूरत अंदाज। इन बहादुर सपूतों ने जान तो दी, लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। जान मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, जान मेरी जमी फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बान। बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता
पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार रेजिडेंट बॉडीगार्ड्स के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवाज टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए, जिन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए रेजिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में the main battle tank of Armored Corps with its lightning speed and lethal firepower, the pride of Pakistan, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की माइनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC-1 इटालियन सीरीज। इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से। M113P के बाद APC मार्स। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, इनका ताल्लुक 226 आजाद कश्मीर हैड कंपनी से।
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशा महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता इज्जत व इकबाल जिनका रस बुलंद लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। तामी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। वाजिद ने अलविदा कर रहे सारे इधर। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता, 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन ज़ीशान हैदर कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC-2 जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से। तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबीती ड्रोन्स गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाजों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है और ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती है। ऑर्लिकन गन के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाजों को 314 सॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। शाहराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर
पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में पावर पॉन्टून ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है, पावर पॉन्टून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50, जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है। खुद कार तरीके से बिछाए जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम, दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमाया हैं, जिनके जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को तमन्नाए अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलत बिलातातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के जरिए महफूज और मौसर राब्ते का जरिया। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीक बीनी से नजर रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और बटोल 1 यूएवी का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती है। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन के साख्त के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई रोटेशन सिस्टम मौजूद।
शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमी से जमी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3 इस आलम की क़ियादत मेजर मोहम्मद जुनेद अदरईस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। ख़वातीनो हज़रात, इम्तियाज मिलिट्री जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। फ्लाई पास्ट में सबसे पहले अश्तर शोला फिशां फिजाओं में हैबत की जलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, इनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। आज की तारीखी परेड लिख दो। कर्नल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। दिन और रात में ऑपरेशन की इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान जिया कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ हाथ पर पेश रहे। स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मानेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूते की जाने बढ़ रही है, उनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। बेल 412 की फॉर्मेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल वकास अनवर गोलड़ा, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। स्काई रेडर्स का अज़्म लिए दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मुख्तलिफ किस्म के प्यूमा हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर आमिर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल क़याम ज़काउद्दीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन्स से है। इस हेलीकॉप्टर में बैक वक्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की खुसूसियात में फौरी नकलो हमल, रसद पहुंचाना और इमदादी कार्रवाइयां शामिल हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, रात की तारीकी में भी परवाज की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान अली खान कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं, जिन्होंने सियाचिन की बुलंदियों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ जरूरियात के मुताबिक हवाई ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का बीड़ा उठाया है। पाक बहरिया के ज़ूलो नाइनर्स स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत, एंटी सबमरीन टारपीडोज, डेप्थ चार्जर्स के अलावा डेप्थ सोनर्स और उनसे मुताल्लिका एवियोनिक्स से लैस कमांडर तला मतीन इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। ज़ूलो नाइनर्स के अकब में सी किंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसे शार्क के नाम से पहचाना जाता है, नसरुम मिनल्लाह का नस्बुल लिए इस फॉर्मेशन की क़यादत शेर वली खान कर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 111 स्क्वाड्रन से है। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन फोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर अवैस और विंग कमांडर फर्रुख कर रहे हैं। 3 एवियोनिक्स कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान वाले चुमक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस गोताखोरी के जदीद आलात से लैस SSG के फ्रैगमैन, ये टेक्निक ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां हेलीकॉप्टर को उतारा नहीं जा सकता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान और मेजर रिहान बुखारी कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी है ना, है
کا روپ دھار چکا ہے اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو میں داخل ہوتا ہوا. Ladies and gentlemen, JF-17 Thunder. تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو، تیرے زید زبوں افرشتہ ہو کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. Ladies and gentlemen, today the JF-17 Thunder is being flown by Wing Commander Mudassir Riaz. And after completing the turn, the pilot is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called Half Cuban 8. خواتین و حضرات، اب پائلٹ آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کر رہا ہے اس کو فضائی اصطلاح میں ہاف کیوبنیٹ کہا جاتا ہے. فضا میں 8 کا ہندسہ بناتے ہوئے اس سے طیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. پاکستان ایئر فورس دنیا کی وہ واحد فضائیہ ہے جو نہ صرف JF-17 تھنڈر جیسا اسٹیٹ آف دی آرٹ طیارہ بذات خود تیار کر رہی ہے، بلکہ حال ہی میں اس طیارے کی طاق مہارت کا لوہا پوری دنیا مان چکی ہے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہاف کیوبن 8 کا دلکش مظاہرہ. ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھیے، علم و ہنر کا اپنے یہ اعجاز دیکھیے، لطف و عطائے رب جہاں ہم پہ ہے، تھنڈر کی آسماں پہ یہ پرواز دیکھیے. Ladies and gentlemen, after the exotic display of Half Cuban 8, Wing Commander Mudassir Riaz is now repositioning his aircraft to approach from the left side of the venue for the inverted flying pass. خواتین و حضرات، ایک طیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ایک ہے، اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے ونگ کمانڈر مدثر ریاض، اور یہ دیکھیے موت اور زیست کے مابین حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے ونگ کمانڈر مدثر ریاض انورٹڈ فلائنگ کا ایک خوبصورت مظاہرہ. That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of PAF pilots. خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ بالخصوص اسی طیارے سے منسلک ہے. تھنڈر رائڈرز اسے تھنڈر ٹرن کہتے ہیں. اس مظاہرے میں پائلٹ پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب گھومے گا. اس مظاہرے کی قابل ذکر بات طیارے کی تند و تیزی، جس کے باعث پائلٹ 7 سے 8 گنا کشش ثقل کی زد میں ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے تھنڈر ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ. Ladies and gentlemen, after the thunder turn, Wing Commander Mudassir Riaz will now reposition his aircraft to approach from the left side of the venue for the next maneuver, the barrel roll. Barrel roll is a maneuver in which the aircraft defines a circular flight path around an imaginary point lying horizontally. Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. خواتین و حضرات، JF-17 جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہیں یہ طیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھے ہوئے اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے. اس مظاہرے میں طیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک کو بڑھاتا ہے، اور انجن کی گڑگڑاہٹ اور ایگزاسٹ سے نکلتے شعلے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. پائلٹ نے تھروٹل کو میکس برنر کی جانب دھکیل دیا اور اب اپنے انجن کے زور پر ہوئے مسل کلائمب کا یہ خوبصورت مظاہرہ. Ladies and gentlemen, you have just witnessed the exotic display of muscle climb. And now, the pilot is adjusting
for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical rolls. मरकूज रखिए पाक फिजाइया के फख्र, पाक फिजाइया की शान JF-17 थंडर पर। वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू, और कितने हसी उफक से हवेदा हुआ है तू। पाक फिजाइया की शान, सदर पाकिस्तान को सब हिलाली परचम के सामने सलामी देने का रवायती अंदाज। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, his best। और परेड वेन्यू के दाएं जानिब से फिजा का सीना चीरते हुए दाखिल होता हुआ सोलो तुर्क। बहुत खुश है, पाकिस्तानी हमारे बहाई हाल, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सलामी के चबूतरे पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, तुर्की की जनाब से आप सबको खुश आमदीद। The first maneuver consists of two separate maneuvers called pitchback and sliceback, commonly used in air fights, used for gaining altitude and energy. ख़वातीनो हज़रात, जिनको सिर्फ तस्वीरों में सोलो तुर्क। और एक दिलकश अंदाज सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे का फिजा में फ्लेयर्स बिखेरते हुए परेड वेन्यू के ऊपर मुख्तसर से दायरे में घूमते। علامہ اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا گر بہاروں کی چندان روتے۔ Solo tricks coming for loop. Get ready for absolute adrenaline rush. At the end of this maneuver, he will be at 300 feet to perform the Falcon turn under a positive 8G force. ख़वातीनो हज़रात, 7 दहाइयों पर मुहित पाक तुर्क दोस्ती का ये रिश्ता इस कदर मजबूत हो चुका है कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के बावजूद हमारे तुर्क भाई हर तरह की रुकावट अबूर कर मीलों की मुसाफत तय करके यौम पाकिस्तान की खुशियों में पाकिस्तानी कौम के साथ शामिल होने के लिए आन पहुंचे हैं। 2021 लिख देने। सोलो तुर्क इस वक्त आपके सामने लूप का मुजाहिरा पेश कर रहा है, जिसमें फिजा में एक दायरा मुकम्मल करने के बाद वो अपने अगले मुजाहिरे की जानिब बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं सोलो तुर्क के मुजाहिरे का दिलकश अंदाज। चकरपड़ियां परेड ग्राउंड के ऊपर घूमते हुए एक खूबसूरत अंदाज में अपना मुजाहिरा पेश करते हुए पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़े इस वक्त परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए। Ladies and gentlemen, this maneuver is unique and belongs to Solo Turk only. With this Solo Turk roll, you will witness aesthetic in 3 dimensions. ख़वातीनो हज़रात, कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपने हरीफों को पिछाड़ कर अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले, हर तरह के खतरों को बालाए ताक रखकर हवा के दोष पर परवाज करने वाले और सोलो एरोबैटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाने वाले सोलो तुर्क इस वक्त फिजा में घूमने का एक खूबसूरत अंदाज। Solo Turk will start the next maneuver in the upside down position and at a low altitude, which causes the blood in body to run through the head. Then it will circle around itself
while it's in front of you. 25 मार्च 2021 की परेड। खातिन हजरात, कैप्टन सरदा दुआन इस वक्त अपने आप को अपने अगले मुजाहिरे के लिए तैयार कर रहे हैं। परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए आपके सामने इन्वर्टेड फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश करेंगे। With this superb roll rate of F-16, Solo Turk will now perform aileron rolls. There are many details to say, but I don't want to make this performance less meaningful. So, witness this fantastic show with full of adrenaline. Today, he is not only promoting excellence, but also excitement for you. रफ्तार, जोश, जुनून और पेशा-वराना महारत का हसीन इम्तिजाज इस वक्त सोलो तुर्क की शानदार मुजाहिरे में आपकी निगाहों के ऐन सामने। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने एलेरॉन रोल का मुजाहिरा पेश करते ये सोलो तुर्क। Solo Turk will now pass in front of you at 100 feet and at a speed of 600 knots, which is very close to the speed of sound, calling out to spotters, catch me if you can. Astonishing, you will watch an trail. He will literally cut the air, but not with his hand, with his wing, of course. And what can I say more? ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त सोलो तुर्क आपके सामने एक तेज रफ्तार पास का मुजाहिरा पेश करेगा। और खादीनो हजरात, वेन्यू की बाइक जानिब से आता हुआ आपके और हमारे जान सोलो तुर्क। पाकिस्तान और तुर्की के कौमी परचमों के माबैन मुमासलत इस बात की गम्माज़ है कि दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर तारीखी, मजहबी और सकाफती विरसा रखते हैं जो दोनों अक़वाम के लिए बाइस फ़ख्र है। Solo Turk is going to come straight ahead.